Hello students, so the topic that we will be dealing today with is antigens and immunogens. Okay, so before moving on to the topic, let us revise, let us take a quick glimpse upon like what we have studied about the effector functions of B lymphocytes and T lymphocytes. Okay, so how does B lymphocyte function? Here we can see that these are the extracellular microbia जिन्हें हम क्या कह रहे हैं antigens भी कह रहे हैं अभी तक. Okay, so these are the antigens. So there are certain surface determinants or there are certain surface structure on the antigen जो हम which are recognized by the receptors of these lymphocytes, either B lymphocyte receptors or the receptors on T cells. Okay, so the receptor of these B cells, which are the membrane bound antibodies. Okay, so either these receptors or the T cell receptors, they recognize certain structures on the surface of the antigen. These structures, they are known as epitopes. Okay, so the membrane bound antibody or the T cell receptor, they recognize the epitopes on the surface of antigen. Okay, and when it binds with the specific antigen, the antigen with the specific epitope or the epitope that is complementary to this or this, as I have already told you that B cells and T cells, they're specific in nature. One type of B cell, it will react or it will interact only with one kind of epitope. Okay, one kind of epitope in an antigen. Fine. So when it finds its complementary epitope, then it performs its effector functions. The B lymphocytes, it produce more antibody of similar kind in the humor. Okay, in the ब्लड या किसी में वो रिलीज कर देगा फ्रीली एंटीबॉडीज. जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज हैं, देन दीज एंटीबॉडी दे आर रिलीज्ड इनटू द ह्यूमर ऑफ द सिस्टम. ओके, सिमिलरली टी सेल रिसेप्टर क्या करेगा? व्हेन इट बाइंड्स टू द complementary epitope, it leads to the killing of the cell. Okay, through various effector functions. So now the thing that we want that I wanted you guys to remember is that B cells and T cells, they are specific in nature and they recognize the surface determinants or the epitopes on the surface of an antigen and then process further in order to perform various functions for the removal or for the destruction of the antigen. Okay, so yes students, till now we have been addressing all the foreign molecules or all the foreign substance that is being introduced in our body and eliciting an immune response. Till now we have been addressing them as antigens. Okay, commonly इन्हें हम antigens बोलते हैं, but there are two different terms, antigens and immunogens. So what is the difference between antigens and immunogens? Okay, so antigens are the substance that only binds with the इम्यून सेल्स. जो भी हमारा बी सेल्स और टी सेल्स का रिसेप्टर है, उनके साथ जो भी फॉरेन सब्सटेंस बाइंड कर रहा है, दैट इज एन एंटीजन. ओके, बट व्हाट हैपन्स, एंटीजन जो है, इट डज नॉट एलिसिट्स और इट डज नॉट इवोक्स एन इम्यून रिस्पॉन्स. इट ओनली बाइंड्स विद द cells of immune system. But an immunogen, what happens? An immunogen, firstly it binds with the cells of immune system and then it evokes an immune response. Okay, so we can say that all immunogens are antigens. Okay, क्योंकि in order to elicit an immune response, सबसे पहला क्या होगा? Immunogen has to bind with the immune cell. Okay, the component of the immune system. जो भी हमारा B cells है या T cells है, उसके साथ immunogen को bind करना पड़ेगा and then it will lead to the activation of the immune cell. Okay, but what happens in case of antigen? Antigen only binds to the receptor, that is the membrane bound antibody in case of B cells या T cell receptor के साथ immunogen antigen bind करेगा, लेकिन वो immune response नहीं इवोक करेगा. ठीक है, एंटीजन सिर्फ बाइंड करेगा, लेकिन एंटीजन के बाइंड होने के बाद सोल्यूबल एंटीबॉडीज़ नहीं फॉर्म होंगी. ओके, और ना ही टी सेल एक्टिवेट होगा वो पर्टिकुलर सेल, जिस भी सेल के एपिटोप्स को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है उसके किलिंग के लिए. इट विल ओनली बाइंड टू इट. लेकिन इम्यूनोजन क्या करेगा? वो पैदा करेगा एक इम्यून रिस्पॉन्स. अगर इम्यूनोजन बाइंड करता है बी सेल रिसेप्टर या बी सेल में जो एंटीबॉडी बाइंड है उसके साथ, तो क्या होगा? मोर एंटीबॉडी ऑफ सेम काइंड विल बी प्रोड्यूस्ड और जो भी हमारा इम्यूनोजन है, इट विल गेट डिस्ट्रक्टेड. फाइन, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटीजन एंड एन इम्यूनोजन.
Fine. So here, see, immunogenicity, it is the ability of antigen to induce a humoral matlab B cell response, okay, or a cell mediated immune response, that is through T cells, cell mediated immune response. In contrast, what is antigenicity? Antigenicity, it is the ability of antigen to combine specifically with the final products of immune response, that is secreted antibodies या surface receptors of T cell. क्या करता है ये? सिर्फ बाइंड करता है, ठीक है, but it does not evoke an immune response. And one thing that I told you, that all molecules that have the property of immunogenicity also have the property of antigenicity. The reverse is not true. ठीक है, अगर इम्यूनोजन है तो वो एंटीजन तो होगा ही, वो बाइंड तो करेगा ही ना पहले इम्यून सेल से, तभी तो अपना इफेक्टर फंक्शन करेगा. बट ऑल एंटीजन्स कैन नॉट बी इम्यूनोजन. एंटीजन सिर्फ बाइंड करेंगे टी सेल्स या बी सेल्स से, ओके, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं वो करेंगे. फाइन. Okay, moving forward. So there are certain small molecules which are known as heptanes. So okay, so these heptanes, they are individually capable of binding to immune cells. मतलब ये B और T cells से bind कर जाते हैं, but they cannot evoke an immune response. Okay, immune response नहीं generate कर सकते हैं. But when these heptane molecules, when they are अटैच्ड टू अ लार्ज कैरियर, ठीक है, एक लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल से जब ये अटैच होते हैं, लार्ज इम्यूनोजेनिक कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है, उससे जब ये अटैच होते हैं, देन दीज हेप्टेन मॉलिक्यूल्स, दे आर एबल टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स. जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखो, दिस इज एन हेप्टेन मॉलिक्यूल. Here, this is an heptane molecule and this is a immunogenic antigen. What do we mean by immunogenic? That कि इस ये क्या करेगा, एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, मतलब इसके व्हेन इट विल गेट इनसाइड द बॉडी, एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये हेप्टीन, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द माउस एंड दिस इम्यूनोजेनिक एंटीजन, सेपरेटली ये दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द माइस, and antibodies are formed against this immunogen, but no antibodies are produced against this heptane. Okay, but in contrast, when immunogenic antigen as a carrier for a heptane, that is this heptane, this is introduced into the mice in combination with this immunogenic antigen, with this large, which functions as a carrier molecule for this heptane. So you can see this is the epitope of the immunogenic antigen. Okay, this is the epitope मतलब इस epitope से, इस surface marker से जो antibody है, it will bind. Okay, तो जब ये heptane को इस large carrier molecule के साथ bind करके when it is introduced into the mice, तो क्या देख रहे हैं हम कि antibodies against heptane भी generate हो रही हैं and antibodies against epitope of this antigen, ये तो generate होंगी ही, but now antibodies against this heptane are being generated. Okay, on introducing this heptane along with the large carrier molecule. Okay, so example of heptane are ortho, meta and para amino benzoic acid. It is a small molecule which is an example of heptane. Okay, yeah, so moving forward. So now we'll be discussing about certain properties of immunogens which contribute to its immunogenicity. Like what is different in immunogen? एंटीजन या इम्यूनोजन में क्या ऐसा डिफरेंस है कि जो इम्यूनोजन है इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन एंटीजन से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हो रहा है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ फॉरेननेस. ठीक है, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारा जो है बॉडी के जो भी इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ रेजिस्टेंट होते हैं. मतलब अपने जो भी हमारे बॉडी के एंटीजन्स हैं, जो भी एपिटोप्स हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट हैं, वो उन्हें रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करेंगे. जो फॉरेन सब्सटेंस है उसके अगेंस्ट ज़्यादा एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस्ड. सो द मोर फॉरेन द एंटीजन इज़, या जब मोर फॉरेन द इम्यूनोजन इज़, उसके अगेंस्ट उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. जैसे बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जो है एक कॉमन एंटीजन यूज़ करते हैं. सो जब वो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोवाइंस, जब काउज में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो इट डज नॉट जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स. काउ में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो उसका सेल्फ प्रोटीन है. लेकिन जब इस बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन को अगर चिकन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड, इम्यून रिस्पॉन्स विल बी generated. So that is how foreignness contribute to the immunogenicity of a substance. That is, the more foreign the substance is, the more intensely immune response will be generated. Okay,
Other thing is molecular weight. So small molecules, that is which is less than 1000 dalton, okay, these are the property of antigens, okay. So small molecules which are less than 1000 dalton, they do not generate an immune response, okay. So the active immunogens, they tend to have a molecular mass of greater than 100,000 daltons, okay. So the molecules having molecular weight greater than 100,000 daltons, they will act as immunogens, or they will generate an immune response. Fine. The other thing is chemical composition. So the more complex the molecule is, the more better immunogen it will prove to be. मतलब अगर molecule जो है बहुत simple है, that is if a molecule is a homopolymer. homopolymer क्या होता है, जिसमें एक मोनोमर है, एक ही टाइप की यूनिट जो है बार बार रिपीट हो रही है. फाइन. अगर मॉलिक्यूल होमोपॉलीमर है तो उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा जनरेट नहीं होगा, ओके. बट इफ इट इज़ एन हेट्रोपॉलीमर, दैट इज इफ इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सो the immune response will be generated with higher efficiency against it, okay. So yeah, so all major classes of biological compounds, lipids, nucleic acids, proteins, they act as antigens. They are homopolymers, all of them are, okay. So homopolymers of a single amino acids are poor immunogens, and heteropolymers, they are good immunogen. That is, they are recognized by T cells and B cells, and an immune response is generated against them. Fine. Next is physical form. So in general, particulate antigens are more immunogenic than soluble antigens, and denatured antigens are more immunogenic than native ones. So the antigens that are found in particulate forms, वो क्या होगा, ज़्यादा immunogenic होगा. That is, it will produce a greater immune response than the antigens though that solubilize in the body. Fine. And denatured antigens, that is the antigens, ये हम नेक्स्ट उसमें भी पढ़ेंगे. द एंटीजन्स दैट हैव बीन डीनेचर्ड इनटू स्मॉल पीसेस. तो जो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इट प्रेजेंट्स डीनेचर्ड एंटीजन्स ऑन इट्स सर्फेस, ओके. सो डीनेचर्ड एंटीजन्स, दे आर मोर इम्यूनोजेनिक देन द नेटिव वंस. नेटिव मतलब जो एंटीजन है वो अपने फिजिकल फॉर्म में है, अपने जैसे वो प्रेजेंट हो, जैसे वो इट इज़ इट इज़ नॉट डीनेचर्ड, ठीक है, पूरा एक सिंगल के फॉर्म में है. बट डीनेचर्ड इज दैट कि वो पर्टिकुलर एंटीजन हैज़ बी डीनेचर्ड इनटू इट्स सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके. Next one is degradability. Antigens that are easily phagocytosed are generally more immunogenic. ठीक है, इसीलिए जो large size के antigens होते हैं, they are phagocytosed easily. That's why they are more immunogenic. क्यों? क्योंकि जो macrophages होंगे, macrophages also act as antigen presenting cells. Antigen presenting cells क्या होते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो macrophages क्या होगा, ये क्या होंगे, इनगल्फ करेंगे इम्यूनोजन को, ओके. जो भी हमारा एंटीजन या इम्यूनोजन है उसे इनगल्फ करेंगे, एंड देन इट विल प्रेजेंट द प्रोसेस्ड इम्यूनोजन या एंटीजन ऑन इट्स सर्फेस अलॉन्ग विद एमएचसी मॉलिक्यूल्स. और फिर जो हमारे टी सेल के रिसेप्टर्स हैं, इट विल रिकग्नाइज दीज एंटीजन या इम्यूनोजन मॉलिक्यूल्स कपल्ड विद द एमएचसी मॉलिक्यूल, एंड इट विल एक्टिवेट द टी सेल. और टी सेल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा जिसमें एंटीजन इज प्रेजेंट, okay. So antigens that are easily phagocytosed by the macrophages, they are more immunogenic. Fine. Next one is nativity, जो हमने अभी डिस्कस किया कि native antigen is an antigen that is not yet processed by an antigen presenting cell to smaller parts, okay. So native antigen, it will be less immunogen. और जो भी immunogen जो है, antigen जो है, जिसे प्रोसेस कर लिया, मतलब एपीसी ने फेगोसाइटोज किया और फिर उसे प्रोसेस कर लिया, और फिर उसे अपने द प्रोसेस्ड एंटीजन उसे एक्सप्रेस किया एपीसी ने अपने सरफेस पे अलॉन्ग विद एमएचसी मॉलिक्यूल, एंड देन जो टी सेल रिसेप्टर है उसने उसके साथ बाइंड किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है. सो टी सेल्स बाइंड विद द प्रोसेस्ड एंटीजन्स और विद द डीनेचर्ड एंटीजन मोर. फाइन, okay. So moving forward now. So these were the properties of immunogen that contribute to immunogenicity. So immunogen में या एंटीजन में जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसे एक अच्छा इम्यूनोजन बना सकती हैं, ठीक है. तो ये तो इम्यूनोजन की प्रॉपर्टी हो गई. अब और प्रॉपर्टीज़ विच विल decide that whether an antigen, it will induce an it will
it is an immunogen or not. ठीक है, whether it shows the property of immunogenicity या whether it generate an immune response. कोई भी foreign substance अगर enter करता है हमारी body में, so whether or not it generate an immune response, पहला तो वो उसकी ही properties पे depend करेगा जो हमने अभी discuss की. Next it will depend on the biological system, ठीक है, जिसमें वो enter कर रहा है उस body के system में it will depend, and also on the route of administration, कि किस route से वो उस particular biological system में enter किया है, उस पर भी depend करेगा that whether it will generate an immune response or not. So let's talk about the other properties. So contribution of the biological system. So the first factor is genetic factors. ठीक है, तो कोई ऐसा substance, some foreign substances, they are immunogenic to a particular species. जैसे हमने अभी bovine serum albumin की ही बात की, या कोई भी foreign substance क्या होता है, immunogenic होता है to a particular species, और non immunogenic होता है अगर हम उसे किसी और species में introduce कर दें. Fine. Similarly कोई एक फॉरेन सब्सटेंस अगर हम एक ही स्पीशीज़ के अंदर भी देखें तो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई एक फॉरेन सब्सटेंस इम्यूनोजेनिक होता है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल में अगर वो फॉरेन सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, बट दूसरे इंडिविजुअल में क्या होगा, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जनरेट नहीं होगा. फाइन. सो ऐसा क्यों होता है? तो ये द रीज़न बिहाइंड दिस इज द जेनेटिक फैक्टर, दैट इज़ द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, या अलग अलग स्पीशीज़ का जो हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन है दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो जो मेन एलिमेंट्स जो इम्यून रिस्पॉन्स में हमारा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में फंक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. फाइन. सो क्या होता है कि कोई स्पीशीज़ में या इंडिविजुअल में इफ़ देयर इज़ अ म्यूटेशन फॉर अ सर्टेन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स या टी सेल्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, सो द डिफरेंस इन द जीन फॉर दीज एलिमेंट्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, उनके जो जीन्स हैं उसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से डिफरेंस आता है. द इम्यून रिएक्शन जो डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट इंडिविजुअल शो करते हैं फॉर अ सेम सब्सटेंस. फाइन. And the other factor can be age. Age can also influence immunogenicity. So very young and very old individuals, they have a diminished ability to mount an immune response to an immunogen. Okay. So less immune response is being generated by individuals of very low and very high age. Okay. Now next I told you was the method of administration. ठीक है, कि किस रूट से जो है या किस मेथड से जो है जो द फॉरेन सब्सटेंस दैट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, सो इट विल डिसाइड कि वेदर इट फंक्शन एज एन एंटीजन और एन इम्यूनोजन. सो द फर्स्ट वन इज डोज. ठीक है, तो डोज क्या है कि हर एक पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस का या हर एक एंटीजन का देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम डोज टू डिसाइड वेदर दैट एंटीजन विल एक्ट एज एन इम्यूनोजन और नॉट. ठीक है, अगर बहुत कम डोज में कोई एंटीजन या कोई फॉरेन सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू अ बॉडी, इनटू अ बायोलॉजिकल सिस्टम, तो क्या होगा, वो बायोलॉजिकल सिस्टम टॉलरेंट हो जाएगा, या तो जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे इतने कम सेल्स में. ठीक है, या जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो उतने कम अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा. सो नो इम्यून रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड. अगेन एक चीज़ होती है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या बहुत ज़्यादा डोज किसी फॉरेन सब्सटेंस की एडमिनिस्टर कर दी जाए, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अगेन जो इम्यून रिस्पॉन्स है इट बिकम्स टॉलरेंटेड. सो देयर इज़ एन ऑप्टिमम डोज. अगर दैट ऑप्टिमम डोज व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बायोलॉजिकल सिस्टम, देन ओनली इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. ओके. द अदर वन इज़ रूट, कि किस रूट से जो है फॉरेन सब्सटेंस जो है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है. सो देयर आर वेरियस रूट्स लाइक इंट्रावेनस, जिसमें वेन के अंदर फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ इंट्राडर्मल, इन विच द एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्किन, एंड सबक्यूटेनियस, in which the antigen is administered beneath the skin. Okay. And intramuscular, in which the antigen it is administered into a muscle. And last one, that is intraperitoneal, it is in it
the antigen, it is administered into the peritoneal cavity. So subcutaneous route, it is better than intravenous or intragastric. That is, more immune response is generated when the foreign substance that is administered through the subcutaneous route. Okay. Now one last topic, yeah, one last factor, that is adjuvant. Okay, so adjuvant, what is adjuvant now? These are the substances that when mixed with an antigen and injected with it enhance the immunogenicity of that antigen. ठीक है, अगर adjuvant को antigen के साथ mix करके introduce करेंगे तो antigen का जो so उस particular substance का जो immunogenicity है that will be increased, मतलब ज़्यादा intense immune response will be generated. पहली चीज़, विदाउट एडजुवेंट डाल इंट्रोड्यूस किया हमने फॉरेन सब्सटेंस को, और सेकंड कि उसे विद एडजुवेंट इंट्रोड्यूस किया. ओके, सो व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द एडजुवेंट, तो उसका जो इम्यूनोजेनिसिटी है या जो इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जनरेट हुआ है दैट विल बी ऑफ हायर इंटेंसिटी. फाइन. So yes, so how adjuvant what change does एडजुवेंट ऐसा क्या चेंजेस फॉरेन सब्सटेंस में करता है कि जिससे उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, हाइटेंड हो जाता है. सो व्हाट चेंजेस द एडजुवेंट मेक्स इन द फॉरेन सब्सटेंस और इन द इम्यूनोजन, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा हो रहा है. हाउ दिस एडजुवेंट वर्क? सो फर्स्ट थिंग कि एंटीजन परसिस्टेंस इज प्रोलॉन्ग. जब जो हम एंटीजन या इम्यूनोजन है उसे जब एडजुवेंट के साथ डाल रहे हैं, सो द इम्यूनोजन, द एंटीजन, इट इज़ परसिस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब वो एक लंबे समय के लिए प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी में, और एक लंबे समय के लिए इट विल इंटरैक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम. तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि हाउ द adjuvants what effects does the adjuvant exerts in order to increase the immune response against the immunogen. So first thing, antigen persistence is prolonged. The second thing is co-stimulatory signals are enhanced. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन स्टिमुलेटरी सिग्नल्स. जब हमारा बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है अगेंस्ट अ फॉरेन सब्सटेंस, तो क्या है, कुछ स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स, जो क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है. ठीक है. तो जब एडजुवेंट हम डालते हैं अलॉन्ग विद द इम्यूनोजन, सो दीज को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स दे आर एनहांस्ड और दे आर इंक्रीज्ड. तो अगर को स्टिमुलेटरी सिस्टम एनहांस होंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स और ज़्यादा हाइटेंड होगा. ओके. थर्ड इज लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज्ड. ठीक है. सो लोकल इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था, ये क्या है, इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का एक एलिमेंट है. इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स जब जनरेट होता है, सो इन्फ्लेमेशन इज़ वन ऑफ द वे बाय थ्रू विच इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, मोर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट एट दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन साइट. ठीक है. तो क्या होगा, जब एडजुवेंट के साथ इम्यूनोजन को डाला जाएगा तो लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज्ड, और इन्फ्लेमेशन है मतलब वहाँ मोर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड मैक्रोफेजेस विल कम टू दैट पर्टिकुलर एरिया एंड a heightened immune response will be generated. क्यों? क्योंकि ज़्यादा number of immune cells are present in that particular area. The fourth one is the non-specific proliferation of lymphocytes is stimulated. ठीक है. तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने जो अभी तक आपको बताया कि जो भी हमारा फॉरेन सब्सटेंस है उस पर एक एपिटोप होगा, एंड द B or T cells that are specific to that particular epitope, they will get proliferated, और वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे. लेकिन जब हम अपने इम्यूनोजन को एडजुवेंट के साथ डालेंगे तो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड, एंड क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स हो जाएंगे अगर नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स भी प्रोलिफरेट करेंगे, एंड अगेन देयर विल बी एन heightened immune response. Okay, so the one here few examples of
adjuvants are given. So first one is the aluminium salt, जिसे हम alum भी बोलते हैं. So it is the only adjuvant that is approved for general human use. ठीक है, तो क्या होगा जब alum को inject करते हैं along with an antigen or immunogen, so it precipitates the antigen, which in turn results in slower release of antigen from the injection site. ठीक है, adjuvant क्या करेगा, alum क्या करेगा, alum which is the adjuvant, वो क्या करेगा, precipitate कर देगा एंटीजन को. तो एंटीजन क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा अपनी इन्फेक्शन साइट पे, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए एंटीजन प्रेजेंट होगा और ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड. ठीक है, and other kind of adjuvant that are used are emulsions. So the first one is फ्रियंट्स इनकम्प्लीट मिनरल ऑयल. ठीक है, तो फ्रियंट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या होता है, इट कंटेन्स एन एंटीजन तो होगा ही, इन एक्वस सोल्यूशन एंड अ मिनरल ऑयल. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के साथ मिनरल ऑयल भी होता है. तो ये ऑयल क्या करता है, ये एंटीजन के अराउंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना लेता है, एंड अगेन द एंटीजन इट इज़ रिलीज्ड स्लोली. ठीक है, तो एंटीजन का जो परसिस्टेंट है वहाँ पे, जो वहाँ पे एंटीजन का टाइम है वहाँ पे रहने का, दैट गेट्स इंक्रीज. फाइन. सो दिस इज हाउ फ्रियंट्स इनकम्प्लीट मिनरल ऑयल एडजुवेंट एक्ट्स. द सेकेंड वन इज फ्रियंट्स कंप्लीट एडजुवेंट. तो इसमें क्या है, फ्रियंट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट में जो कॉम्पोनेंट्स थे वो तो हैं ही, उसके साथ अलॉन्ग विद दैट इट कंटेन्स हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई इसके अलॉन्ग विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रियंट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, इसके साथ क्या है, माइकोबैक्टीरियम है. ओके, तो क्या होगा, द माइकोबैक्टीरियल के जो सेल वॉल है उसमें एक कंपोनेंट होता है म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड. ठीक है, तो जो म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड है वो क्या है, इट एक्टिवेट्स डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम डाला, माइक्रोबैक्टीरियम के सेल वॉल में जो म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड है. ठीक है, तो उसे कौन रिकग्नाइज करता है, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस उसे रिकग्नाइज करते हैं एंड दे गेट एक्टिवेटेड. क्योंकि माइकोबैक्टीरियम भी उस बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए क्या है, अगेन इट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस, तो वो उसके अगेंस्ट भी मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा. एंड दीज मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स दे गिव को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स टू द बी सेल्स एंड टी सेल्स. ठीक है, तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे अगर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स, तो को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स इंक्रीज होंगे, और जब ज़्यादा सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे बी सेल्स और टी सेल्स को, तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स गेट्स हाइटेंड. फाइन. So this is how adjuvant acts in increasing the immune response against a particular foreign substance. Okay, so yeah students, that is it for today's class. In our next class we'll be studying about the structure of antibody. Okay, so thank you.